Hello everyone, this is Rachna, Assistant Professor in Community Health Nursing in Metro College of Nursing. Today we will discuss about drug dispensing. This is the newly integrated topic in syllabus of Community Health Nursing under CHO, Community Health Officer. So about drug dispensing, what is dispensing? It includes all the activities that occur between the time the prescription is presented and the time the medicine or other prescribed items are issued to the patient. जब कोई भी आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, ठीक है, जो डिस्पेंसिंग एरिया है, आप वहाँ पे हो, ड्रग स्टोर में हो, ठीक है, फार्मेसी में है या हेल्थ सेंटर के किसी भी ड्रग स्टोर में हैं आप, तो उस टाइम पे अगर आपकी वहाँ पे ड्यूटी लगती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से डिस्पेंसिंग प्रोसेस होती है। तो डिस्पेंसिंग प्रोसेस में जब कोई भी आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है इन एनी फॉर्म, रिटन फॉर्म या कंप्यूटराइज आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, ठीक है, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो जो प्रिस्क्रिप्शन आइटम हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स हैं, वो आप उस पर्सन को इशू करते हो। आपको जब प्रिस्क्रिप्शन मिलती है और आइटम्स आप उसको देते हो, इशू करते हो, उस बीच वाली प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पेंसिंग। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस: preparing and giving medicine to a named person on the basis of prescription। जो जिसका भी नाम लिखा हुआ है, जिस भी पर्सन का नाम लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन पे, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिपेयर करना और देना। करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर्स ऑर्डर, जो प्रिस्क्राइबर ने, जो डॉक्टर ने जो भी ऑर्डर लिखा है उसमें उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना, सही से उसे पहचानना कि कौन सी दवाई है। देन एक्यूरेट प्रिपरेशन एंड लेबलिंग ऑफ मेडिसिन, उसकी एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू डोसेज, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, एक्यूरेट प्रिपरेशन करना मेडिसिन की और उसको लेबल करना। सो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस। वेयर डज डिस्पेंसिंग टेक्स प्लेस? कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे डिस्पेंसिंग की जाती है, ड्रग डिस्पेंसिंग की जाती है? पब्लिक और प्राइवेट क्लिनिक, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, शॉप्स, कम्युनिटी फार्मेसी। ओके, no matter where dispensing is done or who does it, any error or failure in the dispensing process can seriously affect the care of the patient। ओके, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है स्ट्रेंथ में, डोसेज में, लेबलिंग में, या कंटेमिनेशन हो गया मेडिसिन का, ठीक है, या आपने एक्सपायरी नहीं देखी, ठीक है, या डिले हो गया, तो इट विल अफेक्ट द केयर ऑफ द पेशेंट, हेल्थ ऑफ द पेशेंट। So commonly assumed to be simple routine process, जो dispensing है, it is commonly assumed to be simple and routine process that cannot go wrong, but these three factors can influence the dispensing process. What are the three factors? First one is dispensing person, second is dispensing environment, and third is dispensing process. So we will discuss one by one these three factors. First is dispensing environment. So environment must be clean and organized. By clean we mean it must be hygienic and uncontaminated, and dispensing can be performed accurately and efficiently in an organized manner. So dispensing environment includes the following. First one is staff member, physical surroundings, shelves and storage areas, surfaces used during work, equipment and packaging materials. In staff members involved in dispensing must maintain good personal hygiene and should wear a uniform or other clean clothing. Physical surroundings must be kept free of dust and dirt as much as possible. Though the surroundings of
dispensing area. It must be kept free of dust and dirt. Should be designed to access dispensing area itself and restricted to authorized person only. No other persons will be allowed in that area, in that dispensing area. Okay. Ideal dispensary should be located in protected place and not beside or open to a road or other area where dust, dirt and pollution is present. Okay. Shelving and storage areas. Maintaining a clean environment requires a regular cleaning of shelves and daily cleaning of floors and surfaces and daily removal of garbage. Regular schedule for the checking, cleaning and defrosting of refrigerator. We have to include this also. So regular monitoring of temperature. Refrigerator are strictly for medicine only. उसमें खाना नहीं रखना, उसमें पानी नहीं रखना. जो मेडिसिन स्टोर या जो ड्रग स्टोर या डिस्पेंसिंग एरिया में जो रेफ्रिजरेटर है, दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली यूज फॉर मेडिसिन्स. Then comes to shelving and storage area. Spills must be wiped out immediately, especially if the liquids are sticky, sweet and are attractive to insect or flies. अगर कोई दवाई वहाँ पे गिर गई है तो उसको फटाफट जो है साफ़ करना है. Food and drink must be kept out away from the dispensing area. Dispensing equipment used for measuring liquids, weighing solids or counting tablets or कैप्सूल्स. जो डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट्स में क्या क्या आता है, वो इक्विपमेंट्स जिससे कि हम लिक्विड्स को मेज़र कर सकते हैं, लिक्विड मेडिसिन्स को, सॉलिड मेडिसिन्स को वे कर सकते हैं और टैबलेट्स और कैप्सूल्स को काउंट कर सकते हैं, वो डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट्स में आते हैं. डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड. स्पेस शुड बी सफिशिएंट टू अलाउ मूवमेंट बाय स्टाफ ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग प्रोसेस. जो एरिया है हमारा डिस्पेंसिंग एरिया, उसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि जो डिस्पेंसिंग प्रोसेस है वो आराम से हो सके, जो स्टाफ है उसकी मूवमेंट आराम से हो सके. ठीक है, इतना स्पेस होना ज़रूरी है. द डिस्टेंस दैट द डिस्पेंसर मस्ट कवर ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग प्रोसेस शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन एफिशिएंसी. लेकिन इतना ज़्यादा स्पेस भी ज़रूरी नहीं है कि उसको जो डिस्पेंसिंग प्रोसेस करते करते ही जो है टाइम वेस्ट हो, एनर्जी वेस्ट हो. ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं होना चाहिए और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि उसकी मूवमेंट ही ढंग से ना हो. स्टॉक कंटेनर्स एंड प्रीपैक्ड मेडिसिन मस्ट बी स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑन शेल्व्स, प्रेफरेबली अकॉर्डिंग टू डोसेज फॉर्म्स एंड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जो स्टॉक कंटेनर्स हैं और जो प्रीपैक्ड मेडिसिन्स हैं वो इस तरीके से शेल्व्स पे लगी होनी चाहिए ऑर्गेनाइज्ड वे में, या तो अपनी डोसेज फॉर्म के अकॉर्डिंग या अपनी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग. स्टॉक बॉटल मस्ट बी केप्ट क्लोज एक्सेप्ट व्हेन यूज. जो स्टॉक बॉटल्स हैं आपकी, जो स्टॉक में सामान आपका मेडिसिन रखी हुई है, वो बंद होनी चाहिए जब यूज़ में नहीं आ रही हैं उस टाइम. लिमिटेड रेंज ऑफ प्रिपरेशन विल बी यूज्ड विद ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी. जो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करोगे, लिमिटेड प्रिपरेशन बना के रखोगे, तो वो आप ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होंगी. जितना चाहिए, जितने की ज़रूरत है उतना प्रिपेयर करो और फिर दोबारा प्रिपेयर कर लो, तो हमें उसे ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते हैं. फास्ट मूवर्स में बी प्लेस्ड इन मोस्ट एक्सेसिबल एरिया. जो जल्दी जल्दी इधर उधर जा सकते हैं, मतलब जो एनर्जेटिक होते हैं जो लोग, वो इजी ज़्यादातर एक्सेसिबल एरियाज़ में पहुंच सकते हैं. ठीक है, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, तो फास्ट मूवर्स उन्हें बोला गया है. नेक्स्ट इज़ डिस्पेंसिंग पर्सन. अ सुपरफिशियल लुक एट डिस्पेंसिंग सजेस्ट that it is a process of supplying goods to a patient on the basis of written order. Therefore, it can be done successfully by anyone who can read the prescription, count and fill. As a result, dispensing is often delegated to any staff member. ठीक है, जो मोस्टली जो एक नॉर्मल वे में या सुपरफिशली देखा जाए तो डिस्पेंसिंग क्या है,
किसी भी पेशेंट को रिटन ऑर्डर के बेसिस पे गुड सप्लाई करना, कोई भी सामान देना। सो ये कौन कर सकता है? जो प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर सकता है, अच्छे से काउंट कर सकता है और उसको फुलफिल कर सकता है प्रिस्क्रिप्शन को। Therefore, in addition to writing, counting and filling of the written order, the dispensing team needs specific additional knowledge, skills and attitudes to complete the dispensing process. What are the qualities of the good dispenser? So he or she must be knowledgeable. First of all, knowledge about the medicine being dispensed. It should include common use of medicine, common side effects, common interactions with other medicines, storage needs. Okay. Next is skills in assessing the quality of preparation. He or she must be skillful in assessing the quality of preparation. जो prepare करनी है medicine हमने, उसकी quality को assess कर सके, ये skill होनी चाहिए. Then attributes to cleanliness, accuracy and honesty. He must believe in cleanliness, accuracy and honesty. Attitudes and skills required to communicate effectively with patient. Good communication is very important for a good dispenser. Next is good calculation and arithmetic skills. Then dispensing process. So in dispensing process, it is a repeated procedure that covers all activities involved from receiving the prescription to issuing of the prescribed medicine to the patient. कोई भी रिपीटेड प्रोसीजर है ये, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जब आप किसी से एक प्रिस्क्रिप्शन लेते हो किसी भी पर्सन से और उसको मेडिसिन इशू करते हो, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन देते हो, तो उसको कहते हैं हम डिस्पेंसिंग प्रोसेस. सो we have to fulfill the standard operating procedure or we have to follow the SOP, standard operating procedures, to fulfill the dispensing process. There are 6 major areas of activity of the dispensing process. First is receive and validate the prescription, understand and interpret the prescription, prepare and label items for issue, make a final check, then record action taken, and lastly issue medicine to the patient with clear instructions and advice. First step is receive and validate the prescription. So upon receiving a prescription, the staff member responsible should confirm the name of the patient. जब सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में आती है, what is your responsibility is to confirm the name of the patient, cross check the name and identity, the use of matching numbers or symbols, जो आपकी patient ID होगी, ठीक है, one attached to the prescription and the one given to the patient. Second step is to understand and interpret the prescription. Interpreting a prescription must be done by a staff member who can read the prescription, correctly interpret any abbreviations used by the prescriber or doctor, confirm that the dose required are in normal range. अगर फीमेल या मेल के हिसाब से कोई डोज में चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से, अगर एक डिस्पेंसर को अच्छी नॉलेज होगी तो वो ये चीज़ नोटिफाई कर लेगा कि अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू जेंडर सही डोसेज उसमें लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है. ओके, करेक्टली परफॉर्म एनी कैलकुलेशन ऑफ डोज एंड इशू क्वांटिटी, आइडेंटिफाई एनी कॉमन ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन. ठीक है, कोई 2 ड्रग्स ऐसी तो नहीं उसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई जिनसे इंटरेक्शन हो सकता है. Then correctly perform any calculation of the dosage and issue quantity. Then it is assumed that the prescription will be in written form. Verbal order for medication should be given only in exceptional and emergency situation. Mostly जो होता है prescription written form में होता है. Verbally जब कोई emergency हो या कोई exceptional situation है उसी केस में verbal orders माने जाते हैं.
All calculation should be double checked by the dispenser or counter checked by the another staff member. हमेशा जो है जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको डबल चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद है, अगर कोई वर्बल प्रिस्क्रिप्शन आती है, द ऑर्डर शुड बी रिपीटेड बैक टू द प्रिस्क्राइबर to ensure accuracy, and written confirmation should be supplied within an agreed upon period. अगर कोई भी वर्बल प्रिस्क्रिप्शन आती है, मान लीजिए टेलीफोनिकली डॉक्टर ने बोला, तो उसको दोबारा से बोल के उसको काउंटर चेक करना है। द ऑर्डर शुड बी रिपीटेड बैक टू द प्रिस्क्राइबर to ensure accuracy, and written confirmation should be supplied. और जल्दी से जल्दी जो है, जितना जल्दी हो सके उसका रिटन प्रिस्क्रिप्शन भी लेना ज़रूरी है। उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे आपने डिस्पेंसिंग कर दी, लेकिन आपको रिटन प्रिस्क्रिप्शन जो है मांगना है उनसे विद इन एग्रीड अपॉन पीरियड। जो भी आपका कि 1 घंटे में रिटन प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगी या आधे घंटे में रिटन में लिख के दे दूँगा, ठीक है, तो वट एवर। अगर कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन है तो इफ़ द पर्सन डिस्पेंसिंग द मेडिसिन हैज़ एनी डाउट अबाउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्रिस्क्राइबर, ही और शी मस्ट चेक विद द प्रिस्क्राइबर। अगर कंप्यूटराइज आपको ऑर्डर मिला है तो आप डॉक्टर से जो है फिर से एक बार काउंटर चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद है, चेकिंग ए प्रिस्क्रिप्शन में सेव ए लाइफ, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ए प्रिस्क्रिप्शन, टू क्रॉस चेक इट, ओके। उसके बाद है थर्ड स्टेप, प्रिपेयर एंड लेबल आइटम्स फॉर इशू। इट बिगिन्स आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन इज़ क्लियरली अंडरस्टूड एंड क्वांटिटी हैज़ बीन कैलकुलेटेड। आपने अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया है, प्रिस्क्रिप्शन को समझ लिया है, उसके बाद आपने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है। अब आप क्या करेंगे, जो मेडिसिन है वो प्रिपेयर करेंगे और आइटम्स को लेबल करेंगे। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द लेबल एट दिस पॉइंट एज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ चेक, ओके। सो 3 important procedure we have to do in this step. First is to select stock container और pre-pack। आपने स्टॉक कंटेनर है, जो मेन आपका कंटेनर है, उसको सेलेक्ट करना है, या प्री पैक मेडिसिन है उनको सेलेक्ट करना है। मेज़र और काउंट क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक कंटेनर। स्टॉक कंटेनर से जो क्वांटिटी आपको चाहिए उसको मेज़र करो, या अगर लिक्विड फॉर्म में है या तो आप उसको मेज़र करेंगे, सॉलिड पाउडर फॉर्म में है तो भी मेज़र करेंगे, वे करेंगे, और अगर काउंटेबल फॉर्म में है तो आप उसको काउंट करेंगे। देन उसके बाद आपने मेज़र कर ली क्वांटिटी, आप उसको पैक करेंगे और उसको लेबल करेंगे। सो दीज 3 important procedure you have to do in step 3. Then read the label. What will you do when you select a stock container or pre-pack? You will do, firstly, read the label and cross match the product name and strength against the prescription. आप लेबल जो उस पर है आपके स्टॉक कंटेनर पे या प्री पैक मेडिसिन पे, उसको लेबल को रीड करेंगे, क्रॉस मैच करेंगे प्रोडक्ट का नेम और स्ट्रेंथ जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है कि वही है या कुछ और है। चेक ऑन द एक्सपायरेशन डेट, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करेंगे। चूज़ ऑन द ओल्ड स्टॉक और फर्स्ट एक्सपायरी, जो पहले एक्सपायर होने वाला है या जो पुराना स्टॉक है आप उसको पहले यूज़ करेंगे, तो वो उससे आपने जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। रीड द कंटेनर लेबल एट लीस्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग प्रोसेस। डिस्पेंसिंग प्रोसेस के टाइम पे जो कंटेनर लेबल है, जो आपका स्टॉक कंटेनर है या प्री पैक मेडिसिन हैं जहाँ से आपको मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, उसका लेबल आप 2 बार एटलीस्ट रीड करेंगे। तो मेज़र और काउंट क्वांटिटी फ्रॉम द स्टॉक कंटेनर्स, इट कैन बी इन 2 फॉर्म्स, लिक्विड डोसेज फॉर्म और सॉलिड डोसेज फॉर्म। अगर लिक्विड डोसेज फॉर्म में आपको मेज़र करनी है या काउंट करनी है क्वांटिटी, तो आप क्या करेंगे, लिक्विड मस्ट बी मेजर्ड इन ए क्लीन वेसल एंड शुड बी poured फ्रॉम द स्टॉक बॉटल विद द लेबल kept अपवर्ड, ठीक है।
यूजिंग द टेक्निक अवॉइड्स डैमेज टू द लेबल फ्रॉम एनी स्पिल्ड और ड्रिपिंग लिक्विड। जो आपका लिक्विड जिसमें भरा हुआ है स्टॉक कंटेनर में, उसका लेबल जिस साइड है वो लेबल वाली साइड आपको ऊपर रखनी है, ताकि अगर मेडिसिन आपको पोर करते टाइम वेसल में पोर करते टाइम थोड़ी स्पिल भी होती है तो वो लेबल ख़राब नहीं होता उससे। ठीक है। फिर है सॉलिड डोसेज फॉर्म। हाउ आर यू गोइंग टू काउंट सॉलिड डोसेज फॉर्म फ्रॉम इट्स स्टॉक कंटेनर? द जनरल रूल इज़ द डिस्पेंसर्स हैंड्स मस्ट नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेडिसिन। उसको डायरेक्टली टच नहीं करना है। यूजिंग हैंड्स आर बैड प्रैक्टिस फॉर बोथ हाइजीनिक एंड क्वालिटी रीजन्स। सो हाउ विल यू डू? You will count the medicine in solid dosage form using the following techniques or using the following equipments, like clean piece of paper, you can use it, or clean knife or spatula, clean tablet counting device, lid of the stock container in use, जिसमें आपकी जो सॉलिड मेडिसिन रखी है उसका जो लिड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एनी अदर क्लीन और डस्ट फ्री सर्फेसेस। इमीडिएटली आफ्टर मेजरिंग और काउंटिंग स्टॉक कंटेनर लेबल शुड बी रीचेक्ड फॉर ड्रग नेम एंड स्ट्रेंथ। आपने फिर से जो है दोबारा से जैसे ही आप उसमें से मेज़र कर लेते हो या काउंट कर लेते हो आप जितनी आपको ज़रूरत है, उस स्टॉक कंटेनर का लेबल फिर से आपने रीचेक करना है, ड्रग का नाम और उसकी स्ट्रेंथ, ताकि एक और बार रीचेक करना है कि कहीं कोई फिर से गड़बड़ तो नहीं होगी। ठीक है। कोई टू अवॉइड एनी मिस्टेक आपको फिर से ये रीचेक करना है। पैक एंड लेबल मेडिसिन। अब आप मेज़र कर चुके हैं या काउंट कर चुके हैं मेडिसिन जितनी आपको चाहिए, अब आपने उसे पैक करना है और लेबल करना है। तो पैकिंग की दो कैटेगरीज हैं, एक डिज़ायरेबल एक अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल पैकिंग शुड मीट लिस्टेड रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पीरियड ग्रेटर दैन 30 डेज़। ठीक है, 30 दिनों तक वो जो है उसमें सेफ़ रहनी चाहिए कम से कम पैकिंग में। अनडिज़ायरेबल में पैकिंग प्रोवाइड्स नो प्रोटेक्शन फ्रॉम डर्ट, मॉइस्चर और अदर कंटामिनेंट्स, thus permitting rapid deterioration or contamination. Tablets and capsules should be packed into a clean and dry container such as bottle, plastic envelope, cardboard box and or paper envelope. Capsules and sugar-coated tablets are the most vulnerable to moisture. जो कैप्सूल्स होते हैं आपने देखा है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उन पर प्रोटीन कोटिंग होती है। ठीक है। या शुगर कोटेड जो टैबलेट्स होती हैं वो जल्दी जो है मॉइस्चर से ख़राब हो जाती हैं। Step 4 is make a final check. It is valuable to have a final check done by another staff member. The final check should include the following. ये जो फाइनल चेक है ये कोई दूसरा जो स्टाफ मेंबर है वो भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो एक ही पर्सन अगर वो रीचेक करे जा रहा है तो उसको कई बार जो मिस्टेक होती है वो नज़र नहीं आती है। किसी दूसरे पर्सन से अगर हम रीचेक कराते हैं तो इट्स वेरी ईज़ी कि आप मिस्टेक जो है पकड़ लेते हैं। द फाइनल चेक शुड इंक्लूड द फॉलोइंग: रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर लुकिंग एट द डिस्पेंस्ड मेडिसिन्स, checking of the appropriateness of dosage prescribed, checking for drug interaction। क्या क्या चेक करना है? रीडिंग एंड जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है वो सही है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद डोसेज उसकी चेक करनी है कि सही है या नहीं है, मैच करती है या नहीं, और ड्रग इंट्रैक्शन को चेक करना है, ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं होगा कोई। चेकिंग ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ मेडिसिन डिस्पेंस्ड, उसकी मेडिसिन का नाम चेक करना है, वही है जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है कि नहीं है। चेकिंग द लेबल्स, दोनों के लेबल्स चेक करने हैं। काउंटर साइनिंग द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को काउंटर साइन करना है, पूरा प्रिस्क्रिप्शन जो है बिल्कुल सही जो है मेडिसिन उसने
इशू करने के लिए तैयार की है या नहीं की है। दिस इज़ द लास्ट चेक, फाइनल चेक। देन स्टेप 5, रिकॉर्ड एक्शन टेकन। जो भी आपने एक्शन किया है, जो भी आपने एक्टिविटी की है, उसको रिकॉर्ड करना है। सो 3 मेथड्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन डिस्पेंस्ड। फर्स्ट इज़ फुली फिल्ड प्रिस्क्रिप्शन। एक तो प्रिस्क्रिप्शन को आप पूरा आपने जो है कर दिया है, जितनी मेडिसिन थी सारी आपने तैयार कर दी है, सारी फाइनल चेक हो गया है उनका, ठीक है, जितनी भी मेडिसिन थी। द डिस्पेंसर शुड इनिशियल and annotate the prescription with strength and quantities dispensed। दूसरा मेथड है कि भाई खाली जो डिस्पेंसर है वो जो मेडिसिन दी है उसकी स्ट्रेंथ और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट जो लेटर है वो एनोटेट करें। एनोटेट का मतलब होता है कि कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी एक नोट देना, ठीक है। नोट जैसे आप जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको एनोटेट का मीनिंग साइड में लिख के दे दूँ, स्टार लगा के, एनोटेट मीन्स दिस वन, ठीक है, तो वो हो गया आपका एनोटेट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और जो क्वांटिटी है उसकी मेडिसिन की, उसके अकॉर्डिंग उसका जो इनिशियल है उसको और एनोटेट करना, ठीक है, नोट करना वो करेगा, या पूरी की पूरी प्रिस्क्रिप्शन नोट करके रखेगा वो। या थर्ड है फाइल इट और एंटर द डिटेल्स ऑन रिकॉर्ड बुक एज सुन एज टाइम अवेलेबल। उसको फाइल में रख देगा और रिकॉर्ड बुक में एंटर तब करेगा जब उसके पास टाइम होगा। दूसरे इसमें ये जो फुली फिल्ड प्रिस्क्रिप्शन है इस तरीके से की जाती है, और पार्शली फिल्ड प्रिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके से की जाती है। डिटेल्स ऑफ द मेडिसिन डिस्पेंस मस्ट बी एंटर्ड इनटू द रिकॉर्ड बिफोर आइटम्स आर इशूड टू द पेशेंट। जो डिटेल्स है मेडिसिन की वो रिकॉर्ड में एंट्री की जाती है, उनकी दवाइयाँ पेशेंट को देने से पहले, इशू करने से पहले। उसमें क्या क्या होगा, डेट, मेडिसिन नेम एंड स्ट्रेंथ और डिस्पेंसर का नाम। फिर आती हैं तीसरी कंप्यूटर जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शंस, जो आजकल बहुत देखने को मिलती हैं। किसी भी ड्रग स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर जनरेटेड जो प्रिस्क्रिप्शन या जो उसका समरी रिपोर्ट जो है वो मिलता है। तो बिलिंग जो देखते हैं आप, उसमें कंप्यूटर जनरेटेड होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम शुड रिटेन द इन्फॉर्मेशन विच दैन बी रिकॉल टू जनरेटेड समरी रिपोर्ट। आप पेशेंट के नाम से जो है एक बिल बना देंगे, उसमें जो भी मेडिसिन है, जो स्ट्रेंथ है और जो क्वांटिटी है उसमें फिल कर देंगे, उसका बिल उसे दे देंगे। उसके बाद वो कंप्यूटर में की इन्फॉर्मेशन में रिटेन हो जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, और आपको जब समरी रिपोर्ट बनानी है वहाँ से आप जनरेट कर लेते हैं कि पूरे दिन की आपने कितनी दवाइयाँ, किस क्वांटिटी, किस डोसेज में कौन कौन सी मेडिसिन जो है आपके फार्मेसी से गई है। तो दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन। 6th स्टेप इज़ इशू मेडिसिन टू द पेशेंट विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस। लास्ट में आपने जो रिकॉर्ड कर लिया है, अब लास्ट में आपको क्या करना है कि मेडिसिन पेशेंट को देनी है, पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव को, विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस। मेडिसिन शुड बी गिवन टू द नेम्ड पेशेंट और द पेशेंट्स रिप्रेजेंटेटिव विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड एनी अप्रोप्रिएट एडवाइस अबाउट द मेडिसिन। कोई भी जो मेडिसिन से रिलेटेड एडवाइस है, इम्पॉर्टेंट है वो, या कोई इंस्ट्रक्शन है, वो पेशेंट को या पेशेंट के रिप्रेजेंटेटिव को आपने देनी है। Information detail about the side effect of the drug vary from patient to patient, एज के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग, या जो आपको डिज़ीज़ है उसकी भाई कितना है, सीवियर है, ठीक है, या इंटेंसिटी ऑफ द डिज़ीज़ जो जिसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है साइड इफ़ेक्ट्स की वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट। तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर है एडवाइस शुड बी देयरफॉर कंसंट्रेटेड ऑन,
तो एडवाइस हमें किस से रिलेटेड होनी चाहिए, ज़्यादा किस पे कंसंट्रेट करना है एडवाइस में, व्हेन टू टेक मेडिसिन, हाउ टू टेक मेडिसिन एंड हाउ टू स्टोर द मेडिसिन। ये 3 चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट है। उनको क्या क्या बताना है कि मेडिसिन कब लेनी है, पर्टिकुलरली द रिलेशन टू द फूड और एंड अदर मेडिकेशन, कि खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, ठीक है, या सारी मेडिसिन एक साथ लेनी है या कुछ कुछ टाइम के बाद लेनी है, बीच में टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है। देन हाउ टू टेक मेडिसिन, च्यूड, स्वेलोड होल, टेकन विद प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, चबा के लेनी है, निगलनी है, पूरी लेनी है, या फिर ज़्यादा पानी लेना है। पानी कैसे लेना है, गर्म ठंडा, जूस के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, किस तरीके से लेनी है। देन हाउ टू स्टोर मेडिसिन, और मेडिसिन को रखना क्या है, कहाँ पे है, ठंडी जगह पे, ड्राई जगह पे, कैसी जगह पे रखना है। फिर है वार्निंग्स अबाउट द पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट शुड बी गिवन कॉशियसली। वार्निंग्स देनी है, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स अगर कुछ हैं तो सावधानी के साथ। कॉमन बट हार्मलेस साइड इफ़ेक्ट्स लाइक नोज़िया, माइल्ड डायरिया, यूरिन चेंजिंग इन द कलर, ये सारी हमें जो है वार्निंग्स उन्हें देनी है कि ये हो सकते हैं। मोर सीरियस साइड इफ़ेक्ट शुड बी मैंशनड ओनली विद द एग्रीमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइबर हु नीड्स टू टेक दोज रिस्क इन टू अकाउंट व्हेन प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन, ठीक है। अगर वो अपने रिस्क पे मेडिसिन लेना चाहता है तो ही उसको मोर सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना है, उससे पूछना है कि पक्का ये मेडिसिन लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद द मेडिकेशन शुड हैव द रेसिपिएंट रिपीट बैक द इंस्ट्रक्शंस। जो मेडिसिन ले रहा है, जिसको आप मेडिसिन दे रहे हो, उससे एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन रिपीट कर देनी है। नेक्स्ट, every patient must be treated with respect. The need for confidentiality and privacy when explaining the use of some type of medicine must be recognized, ठीक है। आपको सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताने हैं उसको कि इस मेडिसिन से ये होता है, इस मेडिसिन से वो होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखना है। ही और शी मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। So this is all about drug dispensing. If any doubt, you can ask me. If you have any query, you can ask me anytime. Thank you so much.